سے پہلے آپ کو بتائیں سندھ کابینہ نے 14 انسداد منشیات عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر سندھ آئی ٹی ٹاور بنے گا۔ سندھ کابینہ اجلاس میں جناح اسپتال کے نئے ایمرجنسی ٹاور کے لیے $15 ملین کی گرانٹ اور پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی بھی صوبے کی ملکیت محفوظ کلاؤڈ کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ جناح اسپتال کے نئے ایمرجنسی ٹاور کے لیے $15 ملین کی گرانٹ۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر سندھ آئی ٹی ٹاور بنے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت طویل کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ سندھ کابینہ نے منصوبے کے لیے حبیب انشورنس کی تاریخی عمارت خریدنے کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں 57 نکات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں تشدد پسندی کے خاتمے کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام، کفایت شعاری کے اقدامات اور اسکریننگ ٹیسٹ کی مدت میں جون 2028 تک توسیع کر دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ متوقع ایمرجنسی ٹاور کی کل لاگت $35 ملین۔ پی اے ایف جے پی ایم سی ڈونرز کے ایک کنسورشیم نے پہلے ہی تعمیراتی کام کے لیے $20 ملین کا وعدہ کیا، جبکہ باقی $15 ملین سامان اور سہولیات کے لیے سندھ حکومت سے طلب کیے گئے۔ اجلاس میں پریس کلب کے اراکین کے لیے 639 اضافی رہائشی پلاٹس کی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ نے پیپلز کمیونٹی ہیلتھ سروسز کمپنی کے قیام اور سندھ حکومت کے چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی کے بجٹ کی منظوری دی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ انسداد دہشت گردی اسپیشل عدالتیں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، سکھر اور لاڑکانہ ڈویژنز میں قائم ہوں گی۔ کابینہ نے سندھ چیریٹی کمیشن کے قیام کی منظوری بھی دی۔ کراچی فشریز ہاربر اتھارٹی کی تشکیل 9 کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر فشریز، چیئرمین، سینئر سیکرٹری، وفاقی اور صوبائی اداروں کے سربراہ، ڈی سی کے ماڈی بھی شامل ہوں گے۔ سندھ کابینہ نے ایجوکیشن سٹی لینڈ الاٹمنٹ رولز اور ایجوکیشن سٹی ریگولیشنز کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے غیر مجاز افراد کے پاس موجود گاڑیوں کی فہرست مانگ لی۔ تمام محکموں کی پرانی اور تبدیل شدہ گاڑیاں جنرل ایڈمنسٹریشن کے حوالے کرنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہر 15 روز بعد کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ کمشنر کراچی نے دودھ فروشوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ دودھ کی قیمتیں بڑھانے سے قبل ڈیری فارمرز اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو عوام کو صحت مند دودھ فراہم کرنے کے لیے ایس او پی بنانا ہوگا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ ڈیری فارمز کو لگام ڈالنے کے لیے سب جوڑ لیے۔ دودھ کی کوالٹی اور معیار پر زیرو ٹالرنس ایس او پی بنانے کا مطالبہ۔ دودھ کے نرخوں کے تعین کے حوالے سے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ دودھ فروغ کی جانب سے نرخ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی قیمتوں کے تعین سے قبل اس کی کوالٹی اور صاف ماحول کی فراہمی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایس او پی بنانے سے مشروط کر دیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے تمام جو سیگمنٹس ہیں کہ ایک ایس او پی ایگری کریں جس کی بیسس پہ کوالٹی ملک، ایک اچھی کوالٹی کا دودھ صارفین کو مہیا کر سکیں، ان کو پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ ابھی دودھ کی کوالٹی کے متعلق کافی شکایات ہیں۔ تو جب تک کوالٹی ملک یہ سارے ملک ایشور نہیں کرتے اس وقت تک انتظامیہ کوئی پرائس ایسکیلیشن دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی۔ ڈیری فارمز رہنما شاکر عمر گجر کا کہنا تھا کہ اگر اگلے ہفتے تک کمشنر کراچی نے دودھ کے نرخ نہ بڑھائے تو ہم خود اس کا اعلان کر دیں گے۔ کمشنر کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے فی لیٹر دودھ کے نرخ میں $25 کا اضافہ کرنا ہوگا۔ دودھ کی قیمتوں کا تعلق کمشنر صاحب کی خواہشات سے نہیں ہے۔ اگر کمشنر صاحب نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے تو یقیناً ہم خود اعلان کریں گے اور ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر، سندھ فوڈ اتھارٹی، پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول، کنزیومر رائٹس ایسوسی ایشن اور ہول سیلر اور ڈیری فارمز نے شرکت کی۔ کیمرامین ابراہیم کے ہمراہ رضوان 21۔ شہری ہوشیار ہو جائیں۔ ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھی خاتون کو بھی لازمی ہیلمٹ پہننا ہوگا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مرد ہوں یا خواتین، اب کراچی میں موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر سفر کرنے والے افراد کو بھی ہیلمٹ پہننا ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل پر بیٹھ رہے دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ لازم قرار دے دیا۔ موٹر سائیکل پر سواری کرنے والے خواتین کے لیے بھی ہیلمٹ پہننے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں پہلے ہی قانون موجود ہے۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی خواتین کے لیے ہیلمٹ کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ حکام کے مطابق ہیلمٹ خواتین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور خلاف ورزی پر کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی ایس پی کاشف ندیم کا کہنا تھا کہ جان تو مرد خاتون دونوں کی قیمتی ہے، اس لیے دونوں کا ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ ای ٹکٹنگ کے نظام نے ڈبل ہیلمٹ نہ ہونے پر چالان کا اجرا کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہریوں کو چالان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کار میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے شخص کے لیے بھی سیٹ بیلٹ لازم ہے۔ کیا تھا نا 89A آپ کو بتاتی ہے کہ کوئی بھی موٹر سائیکل کا
सवार ड्राइवर हो या उसके साथ बैठने वाला हो, तो दोनों पे लाजिम है कि वो हेलमेट पहनेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट जो जितने भी एक्सीडेंट हो रहे थे उसकी स्टडी में भी यही देखा गया है, यही पाया गया है कि जो पीछे बैठे हुए अफराद, वो जब उनका भी एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है वो चोटें उनको भी लगती हैं सारी, और नुकसानदेह चोटें लगती हैं। तो ये तो कानून है कि पूरी दुनिया में ये कानून है, दोनों सवारी वो हेलमेट पहनेंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए नए हुक्मनामे पर खवातीन का मिला जुला रद्दअमल। कहती हैं गर्मी में खवातीन का हेलमेट पहनना नामुमकिन है, स्कार्फ या बुरके में कैसे हेलमेट पहनेंगी। किसी ने कहा कानून सबके लिए बराबर है, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी खातून की जिंदगी भी कीमती है। क्यों जरूरी है लेडीज के लिए भी पहनना है, ये भी तो पता चले। रोड इतने खराब है, जाहिर सी बात है हम कैसे लगा सकते हैं। फिर घुटता नकाब के आदत है, हेलमेट की हमें आदत थोड़ी जो हम हेलमेट लगाएंगे। है तो बात ये सही, क्योंकि हादसे का कुछ पता नहीं होता, लेडीज भी गिरती है, अक्सर लेडीज की ही ज्यादा लगती है। होना चाहिए ये कानून। हेलमेट दोनों के लिए सेफ्टी का बाइक है, जिसकी वजह से बड़े एक्सीडेंट से बचे जा सकते हैं। लगाना तो चाहिए, अच्छी बात है, हमारी सेफ्टी है इसमें, लेकिन ये कि यहाँ तो सिंगल भी कोई नहीं पहन रहा। शहर कायद में 60% ट्रैफिक हादसात में बड़ी तादाद मोटरसाइकिल सवारों की होती है। इसका ट्रैफिक हादसात में कमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। आगे बढ़े आपको बताएं, कस्टम्स की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई। बैरून मुल्क सोना और गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। बरामद किए गए सोने और करेंसी की मालियत 11 करोड़ से जायद है। कस्टम हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में 2 खवातीन मुसाफिरों से मजमूई तौर पर 3 किलो से जायद सोना, 11,619 अमरीकी डॉलर बरामद किए गए। दोनों खवातीन मुसाफिर अमाल और मनाल खान को इंटरनेशनल डिपार्चर हॉल में मशकूक समझते हुए रोककर उनके सामान की तलाशी ली गई। अमाल के सामान से 2.0 किलो सोने के जेवरात जबकि 6,143 अमरीकी डॉलर मिले। मनाल खान के सामान से 1.054 किलो सोने के जेवरात और 5,476 अमरीकी डॉलर पाए गए। दोनों मुसाफिरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन, कहीं शहरियों के लिए परेशानी तो कहीं जराइम पेशा अनासर के गिरफ्त। जदीद इलेक्ट्रॉनिक कैमरे जालसाजों और क्रिमिनल्स को बेनकाब करने लगे। शहरी की जानिब से पुलिस को 2 ई-चालान मौसूल होने पर दरख्वास्त दी गई। शहरी की जानिब से दरख्वास्त में बताया गया कि मेरी गाड़ी का मॉडल 2015 जबकि चालान होने वाली गाड़ी का मॉडल 2012 का है। शहरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कहा मुझे 30 अक्टूबर को 10,000 और दूसरा चालान 12 नवंबर को 10,000 का मिला, मगर गाड़ी वही थी। पुलिस की जानिब से दरख्वास्त पर फौरी नोटिस देते हुए जदीद कैमरों के जरिए गाड़ी को तलाश करने के लिए फीडिंग कर दी गई है। ई चालान में तस्वीर में 2 अफराद को गाड़ी चलाते देखा जा सकता है। दोनों मरतबा कराची टोल प्लाजा M9 मोटरवे पर सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। जराइम की रोकथाम के लिए थाना शरीफाबाद पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी। रवा साल कितने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, कितने कातिल गिरफ्तार हुए, कितनी मोटरसाइकिलें बरामद हुई, मुलजिमान से कितना असलहा बरामद हुआ, SHO थाना शरीफाबाद ने आदाद शुमार से आगाह कर दिया। SHO थाना शरीफाबाद ने कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाह करते हुए बताया कि रवा साल अब तक 20 से 30 मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। रवा साल 2 कातलों को गिरफ्तार किया। मुआशरे में मुनशियात का जहर घोलने वाले और गुटखा मावा के 10 केसेस हल किए। 8 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद की। डंपर की जद में आकर शरीफाबाद में शहरी जाम बहक हुआ। डंपर को तहवील में लिया गया जबकि डंपर मालिक को कानून के कटहरे में लाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की है। अल्लाहवाला टाउन और बिलाल कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। ज़ेरे हिरासत अफराद की शनाख्त मेमन, जावेद, गुलाम सखी और जाहिद के नामों से हुई है। तमाम गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए रिहेबिलिटेशन कैंप भेज दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में FP एरिया रहमानाबाद में पानी की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वाटर कॉरपोरेशन के
डायरेक्टर लीगल को नोटिस जारी कर दिया। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में फेडरल बी एरिया रहमानाबाद के रिहायशी बुजुर्ग शहरी की जानिब से पानी की अदम फरहमी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वाटर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर लीगल को तलब कर लिया। दौरान समाअत WSC के वकील ने मौकिफ अपनाया कि इदारे ने दरखास्त गुजार को पानी फराहम किया था, मगर वो मुबैना तौर पर पानी दीगर घरों में तकसीम करते रहे। अदालत ने वकील के मौकिफ पर बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि आपने वकालत कहाँ से सीखी, क्या ऐसे दलाइल दिए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि वो गुज़िश्ता 10 साल से पानी के लिए परेशान हैं। मुहतसिब आला के अहकामात के बावजूद पानी फराहम नहीं किया गया। अदालत ने भी पहले हुक्म दिया था, मगर ताहाल कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दरख्वास्त के वकील के मुताबिक रहमानाबाद में 7000 से जायद घराने हैं, मगर इंतजामिया पानी की सप्लाई के अहकामात पर अमल नहीं कर रही। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और एंटी करप्शन कोर्ट समेत मुख्तलिफ अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। डपर जलाने और इश्तियाल अंगेजी का केस। इंतज़ादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को बरी कर दिया। आफाक अहमद के खिलाफ लांडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दोनों दरखास्तों को यकजा कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। लेजेंड ट्रस्ट फंड से 5 करोड़ 56 लाख रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। महकमा सकाफत के अफसरान की मुबैना मिली भगत सामने आ गई। जारी चेक बुक के जरिए लाखों रुपए निकाले गए। पुलिस रिपोर्ट एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। तफ्तीश का दायरा भी वसी कर दिया गया। जारी चेक बुक नेमतुल्लाह खान और जाज़िबा शौकत के नाम पर जारी हुई। MQM ने नए सूबे से मुतल्लिक तरमीम के लिए अवाम में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि नए सूबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती से मुतल्लिक तरमीम के लिए अवाम के पास जाएंगे। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी बोले, सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का कारकुन पहले हूँ। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। बल्दियाती निज़ाम और नए सूबों का मुतालबा। मुत्तहिदा पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। बहादुराबाद में मुत्तहिदा पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर कामरान टेसोरी और दीगर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए सूबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती से मुतालिक तरमीम के लिए अवाम में जाने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद के लिए MQM की दस्तखती मुहिम में तोसी कर दी। इस शहर पर 17 साल के कब्जे को अब ख़त्म होना चाहिए। इसी हवाले से हमें अंदाज़ा हुआ कि एक और शब खून इस शहर पे मारा जा रहा है। ये फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए हुआ है, पाकिस्तान की लाखों यूसीज के लिए हुआ है। तो पाकिस्तान का मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों के नसीब में आया है, MQM के नसीब में आया है। इस मौके पर गवर्नर कामरान टेसोरी का कहना था कि MQM पाकिस्तान ने लड़कर कराची और हैदराबाद के बुनियादी पैकेज लिए। सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का कारकुन पहले हूँ। मैं सिर्फ ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो फंड्स कराची को मिले और हैदराबाद को, ये MNAs के फंड्स नहीं हैं। ये MQM पाकिस्तान ने स्पेशल कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया है। मैंने उनसे कहा कि मैं सूबे का गवर्नर बाद में हूँ, MQM का कारकुन पहले हूँ। ग्रेटर कराची प्लान को तनकीद का निशाना बनाते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि सूबाई हुकूमत शहर पर जबरी मास्टर प्लान मुसल्लत करने से कबल कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह करे। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सहूलियात बड़ों के लिए छोटे दर बदर। वाटर कॉरपोरेशन वर्कर्स की हड़ताल, सखी हसन और नॉर्थ नाज़िमाबाद चेक्स के दफातर बंद रहे। चेयरमैन CBA इरशाद अहमद खान ने शिकवा किया कि चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर होने के बावजूद दस्तखत नहीं किए जा रहे। मेडिकल की बंदिश से निचले ग्रेड के मुलाजमीन भी दरबदर हो गए हैं। सहूलियात बड़ों के लिए हैं और छोटे दरबदर हैं। वाटर कॉरपोरेशन वर्कर्स की हड़ताल, मेडिकल की बंदिश से निचले ग्रेड के मुलाजमीन दरबदर हो गए हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, अब बॉल इंतजामिया की कोर्ट में है। अपनी हड़ताल पूरी करेंगे, उसके बाद जिसने बात करनी है वो हमसे करना चाहता है तो कर ले, वरना हम इससे आगे का लाए अमल देंगे। अगर इंतज़ामिया के कान पे जू नहीं रेंगी तो फिर इंशाल्लाह पूरा कराची बंद होगा, पूरे कराची का निज़ाम बंद करेंगे। उनको क्या पता कि इदारे कैसे चलते हैं। ये MD
इसको पता नहीं है नाअहल एमडी है, किसको बनाया है। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास टीचर्स का एहतजाज। टीचर्स रहनुमाओं ने कहा कि मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस और सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नोटिस ने वज़ीर आला सिंध हमारे मामले को सिंध काबीना के सामने रखें। आपको बताएं, कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास टीचर्स का एहतजाज। टीचर्स रहनुमाओं ने कहा मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस और सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95वें रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। मेजर जनरल मोहम्मद रजा की सरबराही में वफ्द ने वज़ीर आला हाउस का दौरा किया, जहां चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह, IG गुलाम नबी मेमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का ये दौरा इंतहाई अहमियत रखता है। सिंध हुकूमत सिविल इंतजामिया और कौमी सलामती के इदारों के बाहमी राब्तों को हमेशा तरजीह देती है। उन्होंने बताया कि ADB 2025-26 का हजम 1 खरब रुपए से ज़ायद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर MFN ने वफ्द के हमरा मुलाकात की, जिसमें सूबाई वज़रा शहजल इनाम मेमन और जाम खान चोरो, चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह और दीगर हुक्काम शरीक थे। इजलास में ADB के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शहजल इनाम मेमन ने रेड लाइन मनसूबे के मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी। रेड लाइन मनसूबों पर काम दोबारा शुरू होने पर वज़ीर आला ने इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि सिंध के अवाम के लिए ADB के मनसूबे खुशाइंद हैं। मुकामी और आलमी मार्केट में सोना फिर सस्ता। आलमी मार्केट में सोना $50 कमी $4,042 फी औंस पर आ गया। फी तोला सोने की कीमत 4,26,562 हो गई है। मुकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी देखी गई है। आलमी मार्केट में सोना $50 कमी से $4,042 फी औंस पर आ गया। फी तोला सोने की कीमत 4,26,562 रुपये हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार फिर मुतहरिक हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 710 पॉइंट्स का इजाफा 1,62,936 पर बंद हुआ। सरमायाकारों की जानिब से हिस्स के खरीदारी में दिलचस्पी के बायस मार्केट में तेजी देखी गई। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में तेजी रही और एक मौका पर 100 इंडेक्स 1,63,817 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पाकिस्तान में पहली बार IPA और CID की मेज़बानी में इन्वेट फॉर द ग्रेटर गुड चैलेंज का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। बार की दुनिया में नई लीडरशिप की तश्कील IBA और CED की मेजबानी में इवेंट फॉर द ग्रेटर गुड चैलेंज का इनेकाद। ये इवेंट न्यूयॉर्क में मुकीम पीमा फाउंडेशन और अगस्त लीडरशिप के ताउन से और यूनिलीवर पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क के सबसे बाहिम्मत नौजवान सोशल इनोवेटर ने हिस्सा लिया। 150 से ज्यादा दरख्वास्तों में से 13 इब्तदाई मरहले के स्टार्टअप्स को मुंतखब किया गया। फातेह के लिए 10 लाख रुपए और दूसरी पोजीशन के लिए 7,50,000 और तीसरी पोजीशन को 5 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। जीतने वाले को हाजिरी के वोट के मुताबिक ऑडियंस चॉइस अवार्ड से भी नवाजा गया। इवेंट के जजेस पैनल में अमाद दानिश, जनरल मैनेजर होम केयर यूनिलीवर, मुशर्रफ हाई एडवाइजरी पार्टनर ऑगस्ट लीडरशिप, डॉक्टर लाला रुख एजाज कोहरान, दनीज बेबा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेबा फाउंडेशन शामिल थे। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया को प्रमोट करने के लिए है। बहुत अच्छे आइडियाज आए, यंग स्टूडेंट्स who really want to make change. And today I think we saw some really great ideas. They are I think full of brilliant insights. और आज हमारे पास उन 150 प्लस में से 12 ने प्रेजेंट किया है और उनमें से 4 तो कराची के आइडिया थे और बाकी तमाम जो हैं वो अक्रॉस पाकिस्तान से थे। के लिए हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया है जो कम्प्लीटली सोलर प्लेट्स पे चलेगा और क्या कहते हैं वो एक यूनिट उसका पूरे गांव को मतलब 10 से 20 घरों को साफ पीने का पानी पूरे दिन के लिए दे सकता है। इवेंट में मेंटरशिप, वसाइल और आलमी तजुर्बे के साथ पाकिस्तान के नौजवान इनोवेटर ऐसे हल तैयार कर सकते हैं जो कम्युनिटीज को बदल सकें और मुल्क के समाजी कारोबारी इकोसिस्टम को मजबूत बना सकें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21।